6 مارچ 2026 میں خوش آمدید۔ ہر جمعے کے دن ویکلی ہوراسکوپ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ یہ ویکلی ہوراسکوپ 6 مارچ 2026 سے لے کے 12 مارچ 2026 پر مبنی ہے۔ ان ایام میں مولا علی علیہ السلام کی ضربت کی رات ہے، مولا علی علیہ السلام کی شہادت کی رات ہے اور شب قدر کا آغاز ہے۔ تبھی یہ ہفتہ بہت ہی اہم ہے۔ میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ زمین کا جو فیض ہے وہ ہمیشہ دولت سے جڑتا ہے، اور آسمان کا جو فیض ہے وہ ہمیشہ روحانیت سے جڑتا ہے، اور مٹی کا جو باپ ہے وہ مولا علی علیہ السلام ہے۔ اس لیے کوشش کر کے ان راتوں میں مولا علی علیہ السلام سے استغاثہ کیجیے گا، مولا علی علیہ السلام کا دیا اپنے گھر میں جلائیے گا، اور یا علی ادرکنی، یا علی ادرکنی 108 مرتبہ روز رات کو پڑھ کے اللہ کی دربار میں مولا علی کے صدقے دعا مانگیے گا۔ دیکھیے گا آپ کی دعاؤں کو پرواز ملے گی۔ جو انسان ان راتوں میں یعنی اس ہفتے میں روز مولا علی علیہ السلام کا منت کا دیا جلائے اور ناد علی ناد علی ناد علی مظرہ العجائب 108 مرتبہ پڑھ کے اللہ پاک کی دربار میں دعا مانگے کہ اے میرے اللہ اس ایک ہفتے میں میری دعا قبول و مقبول فرما دے، تو محمد و آل محمد کے صدقے مٹی سے جتنے بھی اسباب جڑے ہوں گے، دولت کے، کاموں کے، وہ سب آپ کی زندگی میں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ مٹی کبھی بھی وہ دعا رد نہیں کرتی جو مولا علی علیہ السلام کے صدقے اللہ کی دربار میں پیش کی گئی ہو۔ یہ ہفتہ بچوں پہ رحم کیجیے گا، یتیموں کا خیال رکھیے گا۔ امام علی علیہ السلام کی وصیت ہے کہ میرے بعد یتیموں کا خیال رکھنا۔ اگر جتنی بھی دامن میں وسعت ہے اس حساب سے اگر پڑوس میں کوئی یتیم رہتا ہے تو کوئی میٹھی چیز راشن کی صورت میں، کپڑوں کی صورت میں، دودھ کی صورت میں، مٹھائی کی صورت میں، گندم کی روٹی کی صورت میں، کھجور کی صورت میں اس کے گھر ضرور بھجوائیے گا۔ دیکھیے گا ان سے آپ کی مرادوں کو پرواز ملے گی، کاموں میں آسانیوں کے اسباب پیدا ہوں گے۔ ہماری دعائیں جو قبول نہیں ہوتی اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہم اندر سے بہت ہی خود غرض ہو چکے ہیں، دعا بھی اس کے لیے مانگتے ہیں جس میں ہمارا کوئی فائدہ ہے۔ جو انسان بغیر کسی فائدے کے اللہ کی دوسری مخلوقات کے لیے دعا مانگتا ہے تو اللہ پاک اس کی دعا کو فوراً قبول کرتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ پہلے دوسروں کے لیے دعا مانگے، اپنے پڑوس میں رہنے والوں کے لیے دعا مانگے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے دعا مانگے، جن سے آپ کا واسطہ نہیں بھی ہے ان کے لیے دعا مانگے، دوسری مخلوقات کے لیے دعا مانگے، اور پھر اپنی دعا اللہ کی دربار میں پیش کریں۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی دعا قبول نہ ہو۔ یہ جو ہفتہ ہے اس میں سورہ قدر کو روز 27 مرتبہ پڑھنا بہت مبارک ہے، اگر وقت ہے تو 108 مرتبہ پڑھنا بہت مبارک ہے۔ جو انسان کھجور پہ سورہ قدر 108 مرتبہ مغرب کے وقت پڑھ کے کھائے گا تو الہامی طاقتوں کے ساتھ جتنی بھی دعائیں اس کی قبول نہیں ہوتی وہ قبول ہو جائیں گی۔ نصیب الجھا ہوا ہے، کام رکے ہوئے ہیں، رشتے اچھے نہیں آتے، دعائیں قبول نہیں ہوتی، رزق میں فراوانی نہیں ہے، مقروض ہو چکے ہیں، سب دعائیں اللہ قبول کر دے گا، کیونکہ اس ہفتے میں سورہ قدر پڑھ کے اللہ کی دربار میں دعا مانگنا انسان کے وجود میں غیبی امداد کا رستہ ہموار کرتا ہے، کیونکہ شب قدر وہ رات ہے جب آسمان کا فیض زمین پہ نازل ہوا۔ میں نے ابھی گزارش کی کہ زمین کا فیض مٹی سے جڑا ہے، آسمان کا فیض روحانیت و معرفت سے جڑا ہے، یعنی زمین ہمیں اسباب دیتی ہے رزق کے اور آسمان ہمیں اسباب دیتا ہے روحانیت و معرفت کے۔ تو یہ جو آخری راتیں رمضان کی ہیں ان میں مولا علی علیہ السلام کی شہادت بھی ہے اور قرآن پاک کا نزول بھی ہے۔ تبھی ان راتوں کو آپ حقیر نہ سمجھیے گا، ان راتوں کو سو کے نہ گوائیے گا۔ سورہ قدر پڑھنے والے کی الہامی طاقتوں میں اضافہ ہوتا ہے، روحانی مرتبہ بڑھتا ہے، روحانی حوالے سے، الہامی حوالے سے ان کی شخصیت میں ایسی قدر پیدا ہوتی ہے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کس سے رشتہ جوڑنا ہے کس سے دوری اختیار کرنی ہے، یہ ساری صلاحیتیں اللہ کے فضل سے انسان کے دماغ پر حاوی ہوتی ہیں، اور رزق کے حوالے سے اسباب مولا علی علیہ السلام سے استغاثہ کرنے سے آئیں گے۔ یعنی اگر آپ رزق کے حوالے سے پریشان ہیں تو ناد علی بار بار پڑھیے گا، اور اگر روحانی حوالے سے، الہامی حوالے سے خود کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو سورہ قدر کوشش کر کے 27 مرتبہ، اگر وقت ہے تو 108 مرتبہ روز پڑھیے گا۔ دیکھیے گا الہامی طاقتوں کے ساتھ غیبی اسباب سے رزق آپ کا بڑھتا جائے گا۔ ان ایام میں پانی زیادہ پینا بہت مبارک ہے، ان ایام میں کھجور کھانا بہت مبارک ہے، ان ایام میں یتیموں کا خیال رکھنا بہت مبارک ہے، ان ایام میں اپنی عورتوں پہ ظلم نہ کرنا، ان ایام میں گھر کو پاک و صاف رکھنا۔ ایک بات آپ ہمیشہ یاد رکھیں، ہم جو نظر اثر میں جلدی مبتلا ہوتے ہیں ان کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے ناخنوں میں مٹی جمع ہوتی ہے۔
جس بھی انسان کے ناخنوں میں مٹی جمع ہوتی ہے تو شیطان وہاں قیام کرتا ہے۔ جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، جب وہ اچھا کام کرنا چاہتا ہے تو نہ چاہتے ہوئے بھی ایک ایسا دائرہ قائم کرتا ہے کہ رحمت اس کے قریب نہیں آتی۔ اس لیے ہمیشہ بزرگ کہتے ہیں کہ ناخنوں میں مٹی جمع ہونے نہ دیں۔ دیکھیں کہ آپ کے ناخن اگر بڑے ہوئے ہیں تو فوراً کاٹ لیں، اگر کاٹ نہیں سکتے تو ناخنوں میں جو مٹی ہے اس کو نکال دیں۔ ان سے آپ جسمانی اور روحانی امراض سے اللہ کی پناہ میں ہوں گے، اور نظر، حسد، جتنے بھی نیگیٹو انرجی کے اثرات ہیں وہ کبھی بھی آپ پہ حاوی نہیں ہوں گے۔ دوسرا عمل، ہم جب سوتے ہیں تو ہمارے چارپائی کے نیچے، ہمارے بیڈ کے نیچے عجیب و غریب چیزیں بعض مرتبہ لوگ رکھ دیتے ہیں۔ کچرا رکھ دیتے ہیں، پرانا سامان رکھ دیتے ہیں، گھر کا سامان اسٹور روم کی طرح بیڈ کے نیچے، چارپائی کے نیچے رکھ دیتے ہیں۔ ان سے نیگیٹو انرجی پیدا ہوتی ہے۔ شیطان ہر اس جگہ پہ اپنا گھر بناتا ہے جہاں میل ہوتی ہے، جہاں نجاست ہوتی ہے۔ کوشش کر کے اپنی کچن کو میلان رکھیے گا، اپنی عورتوں پہ ظلم نہ کیجیے گا۔ اگر ان ایام میں سفید لباس زیادہ پہنتے ہیں تو بہتر ہے، اور اپنے دروازے پہ ناد علی انگلی سے لکھ دیتے ہیں تو بہت مبارک ہے۔ پیشانی پہ رات کو سونے سے پہلے ناد علی لکھ کے کسی بھی مراد کے لیے اللہ کی دربار میں دعا مانگ کے سوئیں گے تو الہامی طاقتوں کے ساتھ آپ کے لیے اسباب پیدا ہوں گے۔ ان ایام میں کوشش کر کے اگر آپ جب بیٹھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کوئی دعا آپ کی فوراً قبول ہو تو ناد علی، ناد علی، ناد علی، ناد علی، صرف اتنا آپ پڑھتے رہیے گا۔ ان سے اللہ پاک کے فضل و کرم سے ایک ایسا دائرہ آپ کے چاروں طرف قائم ہوگا جن سے کائنات پوری آپ کے لیے سبب پیدا کرے گی کہ وہ مراد پوری ہو جائے۔ ان ایام میں خوش رہنا، مطمئن رہنا، حاضر دماغ رہنا، فزیکل ایکٹیویٹیز میں خود کو مصروف کرنا بہت مبارک ہے۔ انویسٹمنٹ کے لیے یہ ایام بڑا مبارک ہے، لیکن بس کوشش کر کے جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہ لیں، ان سے اختلافات منظر عام پہ آ سکتے ہیں۔ علمی حوالے سے، معاشی حوالے سے آپ کی زندگی میں ترقی کے اسباب پیدا ہوں گے۔ یہ ایام آپ کی زندگی میں بہت ہی تیزی اور تبدیلی بھی پیدا کریں گے۔ تبھی کوشش کر کے اگر چاندی ہاتھ میں پہنتے ہیں تو بہتر ہے۔ مٹی کی تسبیح اگر ہاتھ میں لیتے ہیں اور روز رات کو سونے سے پہلے اس تسبیح پہ نصر من اللہ و فتح قریب پڑھ کے اللہ پاک کی دربار میں دعا مانگتے ہیں، یعنی 108 مرتبہ نصر من اللہ و فتح قریب مٹی کی تسبیح پہ پڑھتے ہیں تو وہ بھی غیبی امداد کے لیے بہت ہی مبارک ہوگا۔ ان ایام میں اگر آپ تھوڑا سا ہر اس چیز پہ فوکس کرتے ہیں جو خود کے قریب کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ ان ایام کا جو خاص صدقہ ہے وہ سفید چیز کا ہے، آٹا لے کے کسی مستحق کو دے دیں تو بہتر ہے، اور اس کے ساتھ اگر کھجور لے کے حسب توفیق کسی مستحق کو دیتے ہیں تو بہت بہتر ہے، یعنی کھجور اور آٹا یہ دو چیزیں حسب توفیق لے کے کسی مستحق کو دے دیں۔ اور ان ایام کا جو خاص اسم اعظم ہے وہ ناد علی کو 27 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 27 مرتبہ سورہ قدر کو پڑھنا ہے۔ روز صبح کے آغاز میں 27 مرتبہ سورہ قدر اور 27 مرتبہ ناد علی پڑھ کے جہاں جہاں جائیں گے فتح و کامیابی آپ کے قدموں میں ہوگی۔ برج ایریز والوں کے لیے یہ ایام بہت اہم، بہت مبارک اور کاموں میں آسانیوں کے اسباب پیدا کریں گے۔ حاضر دماغ رہیے گا، مستقل مزاج رہیے گا، میٹھی زبان کو قائم کیجیے گا، انشاءاللہ فتح و کامیابی کے اسباب آپ کے ساتھ ساتھ ہوں گے۔ نہیں یامی جلد بازی سے بچیں، ڈارک کلر پہننے سے دوری اختیار کریں تو بہتر ہے۔ اگر ڈارک کلر پہنتے ہیں مولا علی علیہ السلام کے سوگ کے لیے تو پھر کوشش کریں کہ اس کے ساتھ کوئی سبز رومال یا کوئی سبز چیز اپنے ساتھ رکھیں، ان سے جتنی بھی نیگیٹیوٹی ہے وہ انشاءاللہ آپ سے دور ہوگی۔ ہاتھ میں چاندی پہننا بہت مبارک ہے، الہامی طاقتوں سے جڑنا ان ایام میں بہت مبارک ہے، آدھا گھنٹہ واک پہ جانا بہت مبارک ہے، انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، کسی چیز کو خریدنا چاہتے ہیں تو یہ ایام آپ کے لیے بہت مبارک ہے۔ بس کسی جھگڑے میں آپ مبتلا ہوتے ہوئے دکھ رہے ہیں، اس لیے کوشش کریں کہ جذباتی فیصلوں سے خود کو دور رکھیں۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ کھجور کا اور آٹے کا اور اسم اعظم واپس اس کی بات دے سکتے ہیں۔ جب جب چاند گرہن آتا تو ان چاند گرہن کے لمحات میں لوہے قمر بنایا جاتا ہے جو خاص اسم اعظم کے ورد اور پاکائی کے ساتھ اپنی منزل پاتا ہے۔ جو بھی یہ چاند گرہن کے وقت پڑھا ہوا لوہے قمر اپنے ساتھ رکھے گا یا اپنے بازو پہ باندھے گا تو جہاں جہاں قدم بڑھائے گا توجہ کا مرکز بنے گا، فتح و کامیابی اس کے ساتھ ساتھ ہوگی، اور کوئی بھی نظر، حسد، جادو، تعویذات اور تمام نحس اثرات کبھی اس کے قریب نہیں آئیں گے۔ تو مہربان اسٹوڈنٹس کی طرف سے ہم نے آپ کے لیے بھی یہ خاص چاند گرہن کے وقت پڑھا ہوا لوہے قمر گفٹ رکھا ہے۔ آج، کل اور پرسوں اگر آپ مہربان اسٹون سے کوئی بھی پتھر لیں گے تو یہ پڑھا ہوا لوہے قمر آپ کو گفٹ دیا جائے گا۔ یاد رہے یہ آفر صرف 3 دن کے لیے ہے۔ اگر ہمارا نمبر آپ کو مصروف ملتا ہے تو آپ ہماری ویب سائٹ مہربانی.com پہ آئیں اور یہ اسم اعظم دم شدہ چاند گرہن کے وقت پڑھا ہوا لوہے قمر حاصل کریں۔ برج تورس والوں کے لیے یہ ایام بڑے اہم، مبارک اور کاموں میں آسانیوں کے اسباب پیدا کریں گے۔ جتنا آپ حاضر دماغ رہیں گے اتنا بڑا فائدہ آپ کے قدموں میں آئے گا۔ ان ایام میں کچھ ازدواجی
झगड़े भी मंजर आम पे आते हुए दिख रहे हैं, इसलिए कोशिश करके जज्बाती जल्दबाजी वाले फैसलों से बचें। इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बहुत बेहतर है, पुराने साथी कोई ज़िंदगी में आते हुए दिख रहे हैं। याद रहे, साथियों को दोस्तों को दोस्त रखें, लेकिन हमराज जल्दबाजी में ना बनाएं जब तक उन पर भरोसा कायम नहीं होता। किसी बड़े सफ़र को जाना चाहते हैं तो रुक जाएं तो बेहतर है। अगर कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं तो दिल को पीछे दिमाग को आगे रख के फिर कदम उठाएं तो इंशाल्लाह बड़ा फ़ायदा आपके कदमों में आएगा। इन अय्याम में किसी ऐसे अपने से भी आपका झगड़ा हो सकता है जिनसे आपकी मोहब्बत जुड़ी है, जिनसे आपका दिल और फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं, इसलिए कोशिश करके छोटी बातों को दरगुजर करें। कोई कुछ कहता भी है तो सब्र के साथ जवाब दें। इंशाल्लाह इख्तिलाफ़ात से दूर होंगे तो कामों में आसानी के रास्ते देर तक कायम होंगे। इनका भी नियाम का खजूर का और आटे का और इसमें आज़म वापस की दे सकते हैं। बुर्ज जेमिनी वालों के लिए ये हफ्ता बड़ा अहम और बड़ा मुबारक होगा, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में तरक्की, कामयाबी और खुशियों के रास्ते हमवार होंगे। इसलिए हाजिर दिमाग रहिएगा, मुस्तकिल मिजाज रहिएगा, जल्दबाजी से बचिएगा। इंशाल्लाह तरक्की के असबाब आपके साथ साथ होंगे। इन अय्याम में अगर नाद अली रोज़ रात को 108 मरतबा पढ़ते हैं तो इल्हामी ताकतों के साथ आपकी मुरादें पूरी होंगी। ये अय्याम आपकी दुआओं को कबूल करवाएंगे, इसलिए हाजिर दिमाग रहने के साथ रोज़ फिज़िकल एक्टिविटीज़ में ख़ुद को मसरूफ़ करें। ताज़ा हवा में कुछ देर जाना, पानी ज़्यादा पीना इन अय्याम के लिए बेहतर है। खजूर किसी मुस्तहिक को देना जितनी भी मुसीबतें आपकी ज़िंदगी में वो सब ख़त्म करेगा। जितना आप पुरसुकून हाजिर दिमाग और चेहरे पे मुस्कुराहट कायम रखेंगे उतने ही इख्तिलाफ़ात के रास्ते आपसे दूर दूर होंगे। 3 बड़ी खुशियाँ इस हफ्ते में आपको मिलनी है, लेकिन उसका ताल्लुक आपकी हाजिर दिमागी और मीठी ज़बान से है। इनका भी नियाम का खजूर का और आटे का और इसमें आज़म वापस की दे सकते हैं। बुर्ज कैंसर वालों की ज़िंदगी बदलने वाली है। इल्मी राज आपकी ज़िंदगी में पैदा होगा, बस आप हाजिर दिमाग रहें, क्योंकि अभी आपको पुरानी यादें सताएंगी। पुरानी बातों को, पुरानी यादों को बार बार याद करेंगे तो आपकी ज़िंदगी आज वाली मुतासिर हो सकती है। इसलिए कोशिश करके ख़ुद को मुतमईन और पुरसुकून रखने के साथ कुछ देर नंगे पाँव ज़मीन पर चलें, कुछ देर अपने पाँव पानी में डाल दें, ख़ुद को खुद में उलझाएं, छोटी छोटी खुशियों को क्रिएट करें। खुशी कभी आती नहीं, हमें पैदा करनी पड़ती है। छोटी छोटी बातों को लेकर पूरा दिन सोचते रहेंगे, इनसे आपकी सेहत और आपके काम मुतासिर हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए यह हफ्ता बड़ा अहम साबित होगा। कोशिश करके किसी चीज़ को बेचने में जल्दबाजी न करें। जितना सब्र और हिकमत अमली के साथ कदम उठाएंगे, लड़ाई झगड़े इख्तिलाफात की बातें कम सुने और कम देखेंगे, उतना ही तरक्की के असबाब आपके साथ साथ होंगे। ये अय्याम इल्हामी ताकतों से आपको जोड़ेगा, इसलिए सफ़ेद बिस्तर पर सोना बहुत ज़रूरी है। हाथ में चांदी पहनना बहुत ज़रूरी है। सूरह कद्र को रात को 108 मरतबा रोज़ पढ़ते हैं तो इन 7 अय्याम के बीच में आपकी तमाम मुरादें कबूल हो जाएंगी इंशाअल्लाह। इनका भी नियाम का खजूर का और आटे का और इसमें आज़म पथस की दे सकते हैं। इंसान की पहचान ही कामयाबी की पहली सीढ़ी का नाम है, क्योंकि जब हम इंसान को पहचान के फैसला करते हैं तो देर तक कामयाबी हमारे साथ होती है, दुख और नुकसान हमसे दूर दूर होता है। तभी अल्लाह ने इस ज़मीन पे नीलम पत्थर पैदा किया। जो इंसान इस नीलम पत्थर को अपनी जहल वाली उंगली यानी बीच वाली उंगली में पहनेगा तो उसकी आंखों में ऐसी ताकत पैदा होगी कि वो किसी भी इंसान की आंखों को देखेगा तो फौरन पहचान लेगा कि कौन उसका अपना है और कौन पराया। आज कल और परसों अगर आप मेहरबान स्टोन से ये नीलम पत्थर लेंगे तो इसके साथ ये चांद ग्रहण में पड़ा हुआ लोहे कमर आपको फी सबीलिल्लाह गिफ्ट दिया जाएगा। याद रहे ये लोहे कमर महदूद मिकदार में ही। लियो वालों के लिए ये हफ्ता बड़ा अहम है। राज का हफ्ता है, कामयाबी का हफ्ता है, कामों में आसानियों के असबाब भी पैदा करेगा। इन अय्याम में डार्क कलर कम पहनते तो बेहतर है, अगर डार्क कलर पहनना ज़रूरी है, मौला अली की वजह से डार्क कलर पहनते हैं, मौला अली की वजह से सियाह लिबास पहनते हैं, तो फिर उसके साथ कोई सब्ज़ चीज़, सब्ज़ रुमाल अपने साथ रखें। इनसे इंशाअल्लाह नज़र असर से आप दूर होंगे, क्योंकि इन अय्याम में आपको नज़र असर लगती हुई दिख रही है। कोशिश करके सुबह और रात को चारों के लिए 1 मरतबा आयतुल कुर्सी 1 मरतबा पानी पे दम करके पीते हैं तो बेहतर है, या रात के इख्तिताम में पानी पे चारों को आयतुल कुर्सी दम करके पीते हैं तो बहुत मुबारक होगा। जहाँ भी जाते हैं कान के पीछे काला टीका लगा के जाते हैं तो इंशाअल्लाह नज़र हसद आपको नहीं लगेगी, क्योंकि अभी कोई आपकी बड़ी खुशी रुक सकती है। खुशियों को वक्त से पहले ज़ाहिर न करें, खुशियों को ज़ाहिर करेंगे वक्त से पहले तो खुशियाँ मिलते मिलते रुक सकती हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए हफ्ता अहम है, बस जज्बाती या जल्दबाजी वाले फैसलों से बचें। किसी अपने से झगड़ा होता हुआ दिख रहा है, इसलिए कोशिश करके लोगों को आईना कम दिखाएं। इनका भी नियाम का खजूर का और सफ़ेद चीज़ का और इसमें आदम पतस की दे सकते हैं। वर्गो वालों के लिए ये हफ्ता अल्लाह के फजल से कामयाबियों के रास्ते हमवार करेगा। आप जितना मुतमईन और पुरसुकून रहेंगे उतना बड़ा फ़ायदा आपके कदमों में आएगा। जल्दबाजी से बचें, गुस्से से बचें, तल्ख कलामी से बचें। इल्मी राज आपकी ज़िंदगी में कायम होगा। जितना मिर्च मसाले चटपटे
चटपटी चीज़ें इस हफ्ते कम खाएंगे, बेकरी आइटम्स कम खाएंगे, उतना आपके लिए बेहतर है। फल सब्जियाँ इस हफ्ते ज़्यादा खाएंगे तो बहुत मुबारक है। ये हफ्ता आपको किसी अपने से मिलाएगा, किसी खुशी से मिलाएगा, किसी दौलत के रास्ते से मिलाएगा। इसलिए कोशिश करके ख़ुद को मुतमईन रखने के साथ मीठी ज़बान के साथ गुफ्तगू किया करें। सुने ज़्यादा बोलें कम तो बड़ा फ़ायदा आपके कदमों में होगा। ये हफ्ता आपको इल्हामी ताकतों से भी जोड़ेगा, इसलिए हाजिर दिमाग रहना बहुत ज़रूरी है। इनका भी नियाम का खजूर का और सफ़ेद चीज़ का, और इसमें आदम पता की दे सकते हैं। वो लिब्रा वालों के लिए ये हफ्ता बड़ा अहम इस वजह से भी है क्योंकि आपकी खोए हुए मर्तबे फिर से आपको हासिल होंगे। इल्हामी ताकतों के साथ आपकी दुआएं कबूल होंगी। पूरा हफ्ता हाजिर दिमाग रहें। लड़ाई झगड़े और इख्तलाफात की खबरें कम सुना करें। सारा दिन एक जैसी बातों को और स्क्रीन के साथ चिपके रहेंगे तो आपकी खुशियों को नज़र लग सकती है। इल्हामी और माशी हवाले से राज तब हासिल होगा जब आपकी ज़बान मीठी होगी और हाजिर दिमागी कायम होगी। हाथ में चांदी पहनना बहुत मुबारक है, इनसे आपको औरा और मजबूत होगा। जहाँ जाएंगे तवज्जो का मरकज़ बनेंगे। डार्क कलर कम लाइट कलर ज़्यादा पहनते हैं, पानी अपने साथ रखते हैं, पानी ज़्यादा पीते हैं, खजूर खाते हैं रात के वक्त या शाम के वक्त तो बहुत मुबारक है। सूरह कद्र पढ़ के खजूर खाना इल्हामी ताकतों के साथ आपकी गुफ्तगू को मीठा करेगा, जिनसे आपका असर लोगों के दिमाग और दिल पे होगा। ये हफ्ता आपकी गुफ्तगू से आपको कोई राज इल्म कामयाबी हासिल करवाएगा। इनका भी नियाम गलत का खजूर का और सफ़ेद चीज़ का, और इसमें आदम पतस की दे सकती हैं। बट स्कॉर्पियन के लिए ये हफ्ता तहकीक का हफ्ता है। आप डॉक्यूमेंट्रीज ज़्यादा देखें, उन लोगों से मिलें, उन लोगों से बात करें जिनसे आपके इल्म में इजाफा होता है। कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं तो कदम बढ़ाएं, लेकिन बड़े सफ़र से खुद को दूर रखें। माशी और माली हवाले से 3 बड़े असबाब आपसे जुड़ेंगे, इसलिए कोशिश करके हाथ में चांदी पहनते हैं, रोज़ वॉक पे जाते हैं, चिपचिपी तली हुई चीज़ें इस हफ्ते कम खाते हैं तो बहुत ही मुबारक होगा। जितना आप मुतमईन और पुरसुकून होंगे, हाजिर दिमागी के साथ गुफ्तगू करेंगे, सुन के उसके बाद जवाब देंगे, उतना ही नुकसानात से आप दूर होंगे। इस हफ्ते कुछ देर दोपहर के वक्त रोज़ कर सकते हैं तो बेहतर है, वरना हफ्ते में 1-2 मरतबा कर लें। अपने पाँव पानी में डाल दें। इनसे जितने भी नेगेटिव असरात हैं, नज़र के, हसद के, इख्तलाफात के, वो सब आपसे दूर होंगे। ये हफ्ता इल्मी राज को भी पैदा करेगा, कामों में आसानियों के रास्ते को भी हमवार करेगा। बस मरतबे हासिल तब होंगे जब आपकी ज़बान मीठी होगी। जल्दबाजी और गुस्से से खुद को दूर रखें। इनका भी नियाम का खजूर का और सफ़ेद चीज़ का, और इसमें आदम पतस की दे सकते हैं। जिस भी इंसान के हाथों में दौलत नहीं टिकती, जिस भी इंसान के काम नहीं होते, तो हमारे आबा व अजदाद रमज़ान की रातों में फजर के वक्त फिरोज़े पत्थर पर ख़ास इसमें आज़म दम करके अपने अकीदतमंदों को देते। अल्लाह के फजल से जो भी ये रमज़ान में पढ़ा हुआ फिरोज़ा पहनता, अल्लाह के फजल से उसके हाथों से कभी दौलत कम ना होती, उसका हाथ पैसों से भरा रहता। आज कल और परसों अगर आप मेहरबान स्टोन से ये दौलत बढ़ाने वाला फिरोजा पत्थर लेंगे तो उसके साथ ये चांद ग्रहण के वक्त पढ़ा हुआ लोहे कमर आपको फी सबीलिल्लाह गिफ्ट दिया जाएगा। याद रहे ये लोहे कमर महदूद मिकदार में है। तो सेजिटेरियस वालों के लिए ये हफ्ता रूहानी हफ्ता है, दुआओं की कबूलियत का हफ्ता है। नाद अली को अपनी ढाल बना लें, नाद अली को ज़्यादा पढ़ा करें। नाद अली को सुबह के आगाज़ में 27 मरतबा, रात के इख्तिताम में 27 मरतबा पढ़ के सोया करें, उठा करें, तो देखिएगा इल्हामी ताकतों के साथ गैबी असबाब आपसे जुड़ेंगे। और इसके साथ साथ सूरह कद्र भी पढ़ें। सूरह कद्र को कोशिश करके शाम के वक्त पढ़ते हैं तो बेहतर है, आधी रात के वक्त पढ़ते हैं तो बेहतर है, सहरी के वक्त पढ़ते हैं तो बेहतर है। इनसे इल्हामी ताकतों के साथ आपकी ज़बान में तासीर पैदा होगी। किससे क्या बात करनी है ये हुनर अल्लाह आपको अता करेगा। कोशिश करके हाथ में चांदी पहने, वॉक पे ज़रूर जाएं। इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं तो ये हफ्ता बड़ा मुबारक है। बस जज्बाती और जल्दबाजी वाले फैसलों से बचें, गुस्से पे काबू रखें। इनका भी नियाम का खजूर का और सफ़ेद चीज़ का, और इसमें आदम पतस की दे सकते हैं। बुर्ज कैप्रिकॉर्न वालों के लिए ये हफ्ता बड़ा अहम होगा। इल्मी राज भी लाएगा, कामों में आसानियों के असबाब भी पैदा करेगा। बस किसी अपने से लड़ाई इस हफ्ते में दिख रही है। कोई दूर वाला बंदा, कोई बिछड़ा हुआ साथी भी मंजर आम पे आता हुआ दिख रहा है। इसलिए कोशिश करके लोगों को आईना कम दिखाएं, हाजिर दिमागी पे तवज्जो दें। जितनी मीठी ज़बान होगी उतना बड़ा फ़ायदा कदमों में आएगा। रोज़ वॉक पे जाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ख़ुद को मुतमईन रखना, ख़ुद को फिज़िकल एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ करना अभी आपकी सेहत के लिए भी ज़रूरी है, इल्हामी ताकतों के लिए भी ज़रूरी है, आपकी दिमागी सेहत के लिए भी अच्छा है। और कब किससे क्या बात करनी है ये इस चीज़ से वाज़ेह होगा। अगर आप सारा दिन बैठे रहेंगे, सुस्त बैठेंगे, स्क्रीन के साथ चिपके रहेंगे तो वो एक ही चीज़ आपके दिमाग में चलती रहेगी, जिनसे आपके रिश्ते, आपका काम उलझ सकता है। ये हफ्ता सेहत के लिए थोड़ा सा नया है, इसलिए कोशिश करें कि फल सब्जियाँ ज़्यादा खाएं, मिर्च मसाले बेकरी आइटम्स कम खाएं तो बेहतर है। इन्वेस्टमेंट के लिए भी ये हफ्ता बड़ा ही अहम और मुबारक होगा। इनका भी नियाम का खजूर का और आटे का, और इसमें आज़म वापस की बैठे सकते हैं। बुरी अकीदत वालों के लिए ये हफ्ता तहकीक का हफ्ता है, इल्म का हफ्ता है, खुशियों के लिए असबाब भी पैदा करेगा। बस कोशिश करके इस हफ्ते हाथ में चांदी पहने, पानी अपने साथ रखें, पानी ज़्यादा पिएं। खजूर पे अगर ना दे लियो सूरह कद्र दम करके खाते हैं रात के वक्त या
सहरी के वक्त तो बहुत मुबारक होगा। जितना मुतमईन होंगे, हाजिर दिमाग होंगे, उतना बड़ा फ़ायदा आपके कदमों में आएगा। बस जल्दबाजी से बचें, गुस्से से बचें, तल्ख कलामी से बचें, लोगों को आईना दिखाने से दूरी इख्तियार करें। जितना आप लोगों को आईना कम दिखाएंगे, उतना बड़ा फ़ायदा आपके कदमों में आएगा। इल्मी हवाले से, माशी हवाले से आपकी ज़िंदगी में असबाब पैदा होने हैं। बस जितना हो सके ख़ुद को मुतमईन और हाजिर दिमाग रखें। आप गैर हाजिर रहेंगे, पुरानी बातों को याद करेंगे तो आपका आज मुतासिर होगा। अभी हाजिर दिमाग रहना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। कोशिश करिए कुछ देर ज़मीन पे बैठें, नाक से बड़ी सांस लें, सांस को रोकें, फिर मुंह से सांस छोड़ें। इनसे जितनी भी नेगेटिविटी आपके आसपास है वो इंशाअल्लाह सब ख़त्म हो जाएगी। माशी और माली हवाले से 3 बड़ी खुशियाँ इस हफ्ते में मिलती हुई दिख रही हैं, लेकिन उसका ताल्लुक आपकी मीठी ज़बान और हाजिर दिमागी से है। इनका भी नियाम का खजूर का और आटे का और उसमें आज़म पथस की मैं दे सकती हैं। बुल पैसे वालों के लिए हफ्ता तहकीक का हफ्ता भी है, इल्म का हफ्ता भी है, दुआओं की कबूलियत का हफ्ता भी है। इसलिए कोशिश करके खुद को मुतमईन और पुरसुकून रखें। डार्क रकम लाइट कर ज़्यादा पहने या सब्ज़ कोई चीज़, सब्ज़ कोई रुमाल अपने साथ रखें। हाथ में चांदी पहने तो बहुत मुबारक होगा। नज़र हसद भी इस हफ्ते आपको लगती हुई दिख रही है, इसलिए सुबह के आगाज़ में 4 कुलायत कुर्सी पानी में दम करके पीते हैं या वैसे ही पढ़ के सीने पे दम कर देते हैं तो नज़र हसद के जितने भी नेगेटिव असरात हैं वो आपसे दूर होंगे। इल्मी हवाले से, माशी हवाले से आपकी ज़िंदगी में राज आएगा। इसलिए कोशिश करके खुद को मुतमईन रखने के लिए कुछ देर अपने पाँव पानी में डाल दें। इनसे जितनी भी नेगेटिव आसपास एनर्जी है वो मद्दम होगी। घड़ी इस हफ्ते पहनना बहुत मुबारक है और घड़ी पे नस्र मिनल्लाह है व फतहुन करीब 27 मतलब पढ़ के जहाँ भी जाएंगे तो आपका वक्त, आपकी किस्मत बेहतर हो जाएगी। कब किससे क्या बात करनी है वो हुनर आपको अता होगा। अभी गुफ्तगू से आपको राज मिलेगा। इसलिए ज़बान को मीठा रखें, फ़ौरन वो न कहें जो दिल में आता है। मीठी ज़बान से तरक्की मिलेगी, गुस्से और इख्तलाफात से बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं। सफाई का ख़ास ख्याल रखें, अपनी किचन को साफ़ रखें, अपने वाशरूम को साफ़ रखें। रात को बावजू होकर सोते हैं तो बहुत ही बेहतर होगा। इनका भी नियाम का खजूर का और आटे का और उसमें आज़म पथस की मैं दे सकती हैं। अल्लाह पाक की दरबार में दुआ है कि ऐ मेरे अल्लाह तुझे वास्ता है पंचतन पाक का, जो जो हमें देख रहे हैं सबकी दुआ अपने दरबार में कबूल व मकबूल फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद।